पिछले 7 साल से यहाँ के लोकल लेखपाल थे यहाँ पे, और कई किसानों की ज़मीनें छुड़वाई हैं इन्होंने इसके कब्जे से, बिकॉज ये सारा का सारा पॉलिटिकल माफिया है यहाँ पे। इसने पुलिस को लिख के दिया हुआ था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, बट नो एक्शन। मतलब 3-4 बार उसके शरीर के ऊपर से जीप चढ़ा के, एंड ही वाज कंप्लीटली क्रश्ड टू द पीसेस। जो दो इनका फैमिली है, इनकी फैमिली वाले भी डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं कर सकते। और पिताजी ने हमसे भी कई बार कहा है कि भाई हमारा कत्ल होगा और मारेगा हमें। और जिस दिन उनका मैंने देखा, मैंने चिल्लाया, रोका, लेकिन फिर हमारी तरफ सर दौड़ी तो मैं अपनी जान बचा के भागा। और सीधे 7-7:30 में मैंने सर वृद्धा चौकी में शिकायत दर्ज की नहीं सर, नाम दर्ज। और भी कोई थे जिन्होंने देखा? हाँ, साथ में थे हमारे। नहीं, और जी हम सर वहाँ पे तो थी, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी सर। उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ की थी उसके कागज हैं आपके पास? हाँ, जी सर, सारे कागज हैं। जी कागज। ये पर्चे में वो लिख के खूब बट जाए अगर इसी शोक सभा के साथ, मतलब अगर 1 आध लाख पर्चा पूरे इलाके में बढ़ जाए कि ये देखो ये है इसका करवा सकते। इस जिले में तो बच्चा जाता है, सभी को पता है। आप एक बताएंगे, वो 10 बताएंगे। इसका कोई आई विटनेस है नहीं, बिना आई विटनेस के लॉ कुछ करता नहीं है। आई विटनेस अगर कोई होगा भी तो वो सामने नहीं आएगा। बात आम आदमी के लिए लॉ है, जो पॉलिटिकल मैन के लिए लॉ है। कोई की लड़ाई Long years ago, we made a tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Big story that we are breaking tonight here. Yeah, it's certainly very disturbing what is emerging. Multi-thousand crore rupee telecom scam. 1,86,000 crore rupee coal scam. Dozens of companies managed to corner crores of rupees using proxy political connections which cut across party lines. All parties have come together and said, let's fool the country. Biggest names in politics, in corporate India and the bureaucracy. It seems like we're living in a scam raj. It seems that our political establishment, our polity, is steeped in corruption. All our anti-corruption agencies are compromised. Can we expect this parliament to pass a strong Lokpal bill? We are being looted, we are being robbed. We dared to raise our voice against corruption. And we drafted something called Jan Lokpal bill. The Lokpal bill is to be tabled in Parliament next week. मैं इस लोकपाल का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। ये क्या कर रहे हैं? Unless all the people of this country take to streets from 16th August, there is no hope. अगर इजिप्ट के लोग तहरीर स्क्वायर पे आके अपनी सरकार को बदल सकते हैं, हम तो अपनी सरकार भी नहीं बदलने के लिए कह रहे, हम तो एक कानून पास करने के लिए कह रहे हैं। Sorry,
path that he has chosen to impose his draft of a bill upon Parliament is totally misconceived and fraught with grave consequences for our parliamentary democracy. Are you saying they should contest election? Is that what you're challenging them effectively? Absolutely. Absolutely, you are right. I want them to come into politics. I'll never fight an election. I have a few dreams for this country. Lokpal is one of them. Good judicial system is another. Electoral reforms and decentralization of political power so that participatory democracy is there. If anyone knows how the Indian political party system functions, is Yogendra Yadav. Yogendra Yadav, then give us the solution. Having reached this point and having reached some kind of a dead end, I think the only way forward is political in a more obvious sense of the term, which is by forming a political organization, by contributing to a political alternative. Let's move on for the moment to the big news story of the day. Arvind Kejriwal will fight in the Delhi elections. A political party of honest people has no chance in the country. You will all lose your deposit. The big question we are posing, can Kejriwal really succeed as a politician? अब हमें पहला काम अपना ये करना पड़ेगा कि संगठन मजबूत करना पड़ेगा। हर पोलिंग बूथ पे अपने 10-10 कार्यकर्ता तैयार करने होंगे। हर पोलिंग बूथ पे पहला तो एक आदमी तैयार करना पड़ेगा जो कि वहाँ का कोऑर्डिनेशन का काम कर सके। सबसे प्राइम पर्पस अपना ये है। अब आप ये बताओ, आपकी जान पहचान और ये सारी बना के आप कितने पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता तैयार कर सकते हैं? ये सब लोग असेसमेंट कर लें। आपका नाम? रमेश पांडे। रमेश पांडे जी, आप करते क्या हो? सर मैं बार्कलेज में हूँ, मैनेजमेंट देखता हूँ, एडमिन में हूँ। तो आप नौकरी छोड़ोगे? आपने हाथ खड़ा किया। सर नौकरी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं नौकरी तो मैं अपनी मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको इतना लीडर होके बोलते जब देखता हूँ ना तो सही में बहुत जोश आ जाता है। इतना और इतने दुबले पतले आदमी और इतना किसी भी इतने बड़े बड़े लोगों को सही में बहुत अच्छा काम करा सर आपने। नंबर 96501। कोई भी दिक्कत हो मुझे तो तुरंत इधर आ जाना। हर संडे को मैं सवेरे यहाँ मिलता हूँ। हर संडे को सुबह में मिलता हूँ, तो टाइम भी लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी आ सकते हो। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, साल 1000 एक गरीब लड़की की शादी करेंगे हर साल, लेंगे किसी से कैश कुछ भी नहीं। देखो ऐसी हालत ही क्यों आई कि आपको चैरिटी करनी पड़ी। पहले तो हम गरीब जनता को चूसते हैं और फिर उनके ऊपर दान करते हैं कि 1000 लड़कियों की शादी हम कराएंगे। अगर हम उनका आय बढ़ा दें, अगर ये जितना व्यवस्था है, जो व्यवस्था हर आदमी को चूस रही है, अगर इस व्यवस्था को अगर हम सोच लें कि हमने उनकी आय बढ़ानी है तो वो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। मैं थोड़ा सा इस पे भिन्न विचार रखता हूँ और सारे बस दान दक्षिणा में ही लगे हुए हैं। व्यवस्था कोई नहीं सुधारना चाहता। ये बड़ा मुश्किल है व्यवस्था वाला काम। जैसे इन्होंने कहा तो लंबा काम है, करना तो पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा। दान वालों का काम दान वालों पे छोड़ दीजिए, वो कर रहे हैं अच्छा खासा। जितने आप दान करोगे वहां मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप अपना अलग से कर लेना। जहाँ पे लड़ना कटना मरना है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है? एक नंबर। घर जा रहे हैं जो आम आदमी के सपोर्टर नहीं है। हम कैसे बात करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे कन्विंस करें कि वो आम आदमी के कॉन्सेप्ट को समझ जाए, तो 3-4 मिनट में ही हम उनको समझा पाएं। इस देश में जो 2 साल पहले ये जो अद्भुत क्रांति हुई है, आप में से जितने लोग बैठे हैं
उनमें से ज़्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा। ऐसे लाखों लोग सड़क पे आए, वो इसलिए नहीं आए कि इस पार्टी से सेटिंग कर लेंगे, उस पार्टी से सेटिंग कर लेंगे। वो इस देश की राजनीति की जो एस्टेब्लिशमेंट है, सत्ता प्रतिष्ठान जो इस देश का है, जिसमें सब पार्टियां शामिल हैं, इन सबको अपने तख्त से उतारने के लिए आए। ये सवाल उससे भी जुड़ा है, अगर आपको 10 सीट आ गई तो आप किसके साथ जुड़ेंगे? त्रिशंकु विधानसभा हो गई, किसकी सरकार बनवाएंगे? हमने औपचारिक रूप से कहा है, हम खुल के कह रहे हैं, आप बिल्कुल बेहिचक कह दीजिए, मैं आपके सामने प्रण लेता हूँ, कुछ भी हो जाए, हम इन बड़ी पार्टियों में से किसी के साथ भी सीधा उल्टा दाएं बाएं कोई समझौता नहीं करेंगे। और इससे बड़ी बात ये, हम हर फैसले को लोगों के बीच मोहल्ला सभा में लेके आए। आपकी सड़क बननी चाहिए कि नहीं, सड़क पे कितना पैसा लगना चाहिए और सड़क ठीक बनी कि नहीं, इसके सारे कागज हम लोगों के बीच में लेके आए। Bhupendra Yadav, I have to say that I was one of those who was very surprised when you came on board with Arvind Kejriwal. For the last 20 years, I have been associated with people's movements. Which wanted to go towards a political alternative. Not just wanted to, they actually tried. They tried. I didn't make it because it was not viable. But do you think Arvind Kejriwal is that person? Arvind has energy. He has out-of-box thinking. He has the ability to cut through various things and to come to the... He also has a reputation of being extremely intolerant of other people's views. The extent to which you bring energy is the extent to which you drive the movement. Yes. So those who bring energy also give leadership. लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताइए। जब वोटिंग का टाइम होगा, जो मतदाता हमारे यहाँ से वोट डालने के लिए जाएंगे, उनके लिए क्या सुविधा होगी? जैसा मैंने बताया जी, हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, तो अगर आप सब लोग मिलके कोई सुविधा कर लोगे तो ठीक है। लड़ाई तो हमारी और आपकी साझी लड़ाई है। तो अभी तक कैसे जाते थे वो? कांग्रेस बीजेपी वाले ले जाते थे। हाँ, वो लोग गाड़ी लगाते थे। वो लोग गाड़ी लगाते थे। सर, आप दोबारा उनकी गाड़ी में बैठ के हमारे को वोट दे दीजिए ना सर। मैं तो बैठना पसंद नहीं करूँगा। तो फिर इस बार पैदल जाइए, फिर आप इस बार पैदल जाके वोट दीजिए। पैदल जाऊँगा, बस मजा उसी में है। पैदल जाऊँगा, अगर रेस्पॉन्स में लगा तो हम लोग सारे मिलके एक आने जाने का तो इंतजाम कर ही सकते हैं। अपने काम के लिए भी तो बाहर जाते हैं, और ये भी अपना ही काम है, ये कोई और दूसरे का काम थोड़ी है। हम ही बना लेते हैं, बहुत से लेते हैं वोटों के पैसे, देने वाले खूब लेंगे और क्या सब देने जाते हैं, दारू चलाते हैं, बियर चलाते हैं, खूब देने वाले अंदर बहुत देखने जाता है। नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए, और जो ले तो उसको दे, नहीं तो उससे झूठ नहीं बोले। अरे अम्मा, कहाँ सीखी हो कि जो पैसा दे उसको वोट दो? कहाँ सीखी हो ये? वो पैसा दे रहा गलत काम के लिए। मैं शपथ खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आने वाले किसी भी चुनाव में दारू लेके या पैसा लेके वोट नहीं डालूंगा। ये कई लोगों के मुंह नहीं चल रहे, वो उनको लगता है दारू नहीं मिलेगी तो वोट कैसे डालेंगे, है ना? पीने की सबकी प्रॉब्लम है। You've been a 3-term chief minister. You're completing 15 years as chief minister of Delhi. So far, your opponents from the BJP have been lackluster. This time around, there is a person who's come out from nowhere, and that is why the space that he is occupied becomes extremely important. What is his status? Except that he keeps on talking about himself, saying, I'm doing this. And then he changes track also. He said, we are not interested in politics, we are only interested in corruption, anti-corruption movement. He's entered politics. So what is their policy? What are they going to do? People can find it interesting to see that, somebody is entering politics for the first time. But eventually when it comes to selecting governments,
People are serious about it. Just don't get carried away. 92.7 बिग FM पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। सत्याग्रह फिल्म आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है एंड फिल्म जन लोकपाल आंदोलन पर बेस्ड है और इस फिल्म में अजय देवगन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का किरदार। इसे तो देखना बनता है। आपके सारे लोग और आपका ये सिस्टम सब सड़े हुए घूसखोर हैं। ए शराब! तो अब आपकी इस करप्शन और अन्याय का सामना हम सब मिलकर करेंगे। जब देश का ही फ्यूचर अंधकार में है, तो हमारा उज्जवल कैसे होगा? इसीलिए हमें राजनीति को बदलना होगा। अर्जुन, बाहर से नहीं, बल्कि उनमें शामिल होकर तुम कमिटेड नौजवानों के साथ मिलकर जल सत्याग्रह के सिद्धांतों पर पार्टी बनाओ। हम सब सपोर्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, पहले तो फिल्म कैसी लगी और उस सत्याग्रह और इस सत्याग्रह में क्या? ये फिल्म अंत में उसी नतीजे पे पहुंची है जिस नतीजे पे उस आंदोलन के बाद बहुत सारे लोग पहुंचे। आपकी चुनी हुई राह को चूंकि फिल्म ने सही ठहराया, इसलिए लग रहा है आपको कि सही है। आपको कुछ और लगता है? नहीं, आपको नहीं लगता है जो सवाल खड़े किए गए कि जिस तरह से कई बार अनुशासनहीनता की बात आई, सवाल ये आया कि क्या भीड़ जब कई बार अपना विवेक खो देता है तब ऐसी स्थिति में क्या हो? क्या वो मुद्दे बहुत अहम नहीं है लोकतंत्र? बिल्कुल अहम है वो मुद्दे। दो चीजें हैं, आपने जो प्रश्न उठाया वो प्रश्न का जवाब ये फिल्म देती है। आपने अनुशासनहीनता की बात कही। इस फिल्म में एक औरत की कहानी बताई जाती है, आदमी की कहानी बताई जाती है जो 7 से अपनी जमीन सरकार से छुड़वाने के लिए ठोकरें खा रहा है। वो आदमी कहाँ जाएगा? उसको आप अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाते हैं। अगर अनुशासन के को तोड़ेगा तो उससे समस्या का हल निकल जाएगा। ये अनुशासन किसने बनाया है? ये शासन किसने बनाया है? किसके लिए बनाया है? इन नेताओं के लिए बनाया है? इन बिजली कंपनियों के लिए बनाया है? उन लोगों के लिए शासन बनाया है? हमारे लिए शासन है, शासन उन लोगों के लिए नहीं है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल जनता की अदालत का है, चुनावों का है, लिटमस टेस्ट का है। अगर वाकई जनता दिल के साथ जुड़ी थी तो चुनावों में अरविंद केजरीवाल का साथ देगी। ये पूछेंगे उनसे ब्रेक के बाद। फौरन लौटे, आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली नहीं तो मैंने कभी इन चीज़ों मैंने देखा था है। ये सब के सब आगे कुछ केसेस बना, केवल कुछ केसेस। अच्छा, इस क्या है ये केसेस? सब आगे हैं। ये एक चिट्ठी है, ये मेरे हाथ परसों लगी है। इनकी किस्मत खराब है, इनकी सारी चिट्ठियां हमारे हाथ लग जाती है। बिजली के बिलों से कौन कौन दुखी है? सारे दुखी हैं। इनका ये 11,000 रुपए का बिजली का बिल आया है। ये 25 गज के प्लॉट में रहती है। ये महंगाई क्यों हो रही है? इतने बिल क्यों आ रहे हैं? इसी का खुलासा करने के लिए आए हैं। 2 मिनट के लिए बैठो, सारे जने बैठो। बिजली के दाम इतने क्यों बढ़ गए? याद करो 2002 प्राइवेटाइजेशन किया था 2002 में। शीला दीक्षित जी ने कहा था टाटा और अनिल अंबानी को बिजली की कंपनी दे रहे हैं, ये बिजली की चोरी कम करेंगे और दिल्ली में जब बिजली की चोरी कम हो जाएगी तो हम आपके बिजली के रेट कम कर देंगे। बोला था कि नहीं बोला था 2002 में? आज 2013 हो गया, बिजली की चोरी तो कम हो गई, आपके बिल कम हुए क्या? बिल तो और दुगने तिगने हो गए। अच्छा, एक चीज बताओ, दिल्ली में बिजली के दाम कौन तय करता है? DERC, एक सरकारी संस्था है, उसका नाम है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। 2010 में DERC के चेयरमैन होते थे बरजिंदर सिंह। टाटा और अंबानी दोनों दौड़े दौड़े गए बरजिंदर सिंह के पास, बोले जी 630 करोड़ का घाटा हो गया बिजली कंपनियों को, दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाओ। बरजिंदर सिंह बोले ऐसे नहीं बढ़ाता, पहले अपने बही खाते लेके आओ।
जब बरजिंदर सिंह जी ने दोनों के बही खाते देखे तो उनका माथा ठनक गया। उनमें 630 करोड़ का घाटा नहीं हुआ था, उसमें 3,577 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो बरजिंदर सिंह जी ने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर में लिखा कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए, दिल्ली में बिजली के दाम 23% घटने चाहिए। ये ऑर्डर 5 मई 2010 की सुबह 11 बजे पास होने वाला था। 4 मई की रात को शीला दीक्षित जी ने बरजिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी कि इस ऑर्डर को रोक लो, इस ऑर्डर को पास मत होने दो। ये शीला दीक्षित की चिट्ठी की कॉपी है। ये हजारों करोड़ रुपया जो बचा ये किसके पास गया? वो सारा का सारा मुनाफा ये कंपनियां ले गई। With his eyes firmly set on Delhi elections, Arvind Kejriwal has now made power and water his poll planks apart from corruption. We are the best power producing states in the country and it still remains the cheapest. Mr. Kejriwal has taken it up. I don't think the common man believes it. Are we heading now for a way of fighting corruption which is largely about naming and shaming, if you like, putting names out there and saying, look, this is what the charges are? For a very long time, all the main political parties of this country have followed a code of silence. You don't talk about Ranjan Bhattacharya, we won't talk about Robert Vadra. You don't talk about this particular company, I wouldn't talk about that political company. In democracy, such codes needs to be shattered. A rank outsider has come and has shattered that. उन्होंने मारना चालू किया और हम सब लोगों ने चारों तरफ से घेरना चालू किया, सिर्फ अखिलेश को। हमें से किसी ने भी मारपीट नहीं की। चैन भी था हाथ में, पुलिस भी थी। पुलिस भी थी। हाँ, पुलिस वाले ने क्या किया, अपना नेम प्लेट उतारा, अपनी जेब में डाल दिया और लाठी अपनी जो उसके हाथ में थी एक को पकड़ा दिया। तो हमारे और भी लड़के थे जो दूर से देख रहे थे सारी चीज़ों को। तो हमने कोशिश यही की है कि जितना हम अपना बचाव कर सकते हैं जब तक कोई मदद के लिए ना आए। उसके बाद हम लोग थाने के बाहर जाके धरने पे बैठे। थाने के सामने कभी धरना मत देना। हमारा बैटल ग्राउंड जो थाना है वो उनका युद्ध क्षेत्र है, तो वहाँ पे वो माहिर हैं क्योंकि सारे का सारा रूल उनका। हमारा युद्ध क्षेत्र हमारी जनता है, युद्ध उनको यहाँ खींचना है अपने को, हमें उनके युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना, उनको इधर खींचना है। आम आदमी के हर मंच से ये बात उठनी चाहिए, हम लोग इस तरह पिट रहे हैं। कल रात को 10:30 बजे मॉडल टाउन के अंदर हमारे एक वॉलंटियर को उन्होंने डंडों से और चेन से इतनी बुरी तरह से पीटा, उसको आज 2 टाँके आए, सर फूट गया उसका। उनको क्या लगता है हमारा हौसला तोड़ देंगे वो? अगर तुमको लगता है कि मारपीट इस देश में समस्या का समाधान है तो तुम चौक बता दो, मैं उस चौक के ऊपर आ जाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, जितना पीटना है पीट लेना। तुम्हारी इसी राजनीति को तो खत्म करने के लिए आए भाजपा वालों की और कांग्रेस वालों की मार पिटाई की जो तुम लोगों की राजनीति है। हम लोगों को खड़े होना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर हम लोगों को खड़े होना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर हम शीला दीक्षित की और भाजपा की गुलामी करते रहेंगे। मैंने तय किया है कि 23 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के ऊपर बैठूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल जल ग्रहण करूंगा। कब तक? जब तक दिल्ली की जनता के मन से डर ना निकल जाए, जब तक दिल्ली की जनता अपने अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद ना कर दे। ये जितने कार्यकर्ता जितने लोग लगे हुए हैं
इनको लग रहा है कि इस बार तो देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डर निकालो अपने मन का। 1,12,000 लोग इकट्ठे हो गए 2 दिन के अंदर। अभी तो देखो पूरी दिल्ली इकट्ठी होगी, विश्वास तो करो अपने ऊपर। बिजली वाले आए तो उनको भगा दें अपनी गली से, पानी वाले आए पानी काटने तो भगा दें अपनी गली से। ये बिजली पानी किसकी है? शीला दीक्षित की है कि हमारी है? किसकी बिजली पानी है? हमारी है कि शीला दीक्षित की है? हमारी बिजली पानी है। अनिल अंबानी की बिजली पानी है कि हमारी है? हमारी बिजली पानी है। छीननी पड़ेगी इनसे वापस। बड़े सबूल के पास मेरा अच्छा जी शीला दीक्षित जी जीत जाए यहाँ से, लेकिन हमें ये पता नहीं था ये हमारे रोटी की रोटी भी निकाल लेंगी, पानी भी छीन लेंगे, हमारे खून में चूस लाएंगे। 4 लाख से ज्यादा। 4 लाख, बस 4 लाख से ज्यादा, जैसे 4 लाख साथी जुड़ चुके हैं, जुड़े हटाओ, जुड़े हैं। अब हो गया, देखो मैंने जमा किया है वो भी नहीं, लेकिन हमारा साल का भी नहीं आता इतना, तो मैंने इनको जमा करके दे दिया कि इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं चेकिंग करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। दिल्ली में जितना पिछले 14 वर्षों में काम हुआ है सब लोग जानते हैं, और 3-3 बार किसी सरकार को लाना ये दिल्ली की जनता का काम है। ये यहाँ बैठे हुए नेताओं का काम नहीं है कि वो किसको हटा देते हैं, किसको ले आते हैं। और ऐसे बताइए कि डीआरसी ने जब ये कहा कि दाम कम करो, शीला दीक्षित जी ने चिट्ठी क्यों लिखी? शीला दीक्षित जी ने डीआरसी का ऑर्डर क्यों रुकवाया? इस बात का नसीब सिंह के पास क्या जवाब है? गलत बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। डीआरसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और अगर आप ये कहना चाहते हो लगातार पागल बना सकता है किसी को। टेंशन में जी रहा है, आप सारे मुद्दों पे चीखने लगते हैं, चीखने से नहीं सॉल्यूशन निकलते हैं। आप इतना चीखते हैं, इससे नहीं सॉल्यूशन निकलता है। आवाज तेज है, चीखने का मामला नहीं है। बात करिए, बात सुनिए। थैंक यू जी, जनाब अली। अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलकर, आज तक तो पहली बार मिला। दरअसल कुमार हमारा पुराना दोस्त है, हमारा विश्वास हमारा पुराना दोस्त है। बहुत सारी चीजें आपकी पता है। अरे सर कोई बात नहीं है, क्या बात होगी, और भी बात जो हो पॉलिटिक्स में हम भी क्या दिक्कत है, बहुत सारी चीजें पता होंगी या नहीं होंगी तो सब सामने आ जाएंगी। तो पर्दा हट गया। हाँ क्या रह गया, पर्दा हट गया। बहुत देर बाद अभी तो आप दूध पीना सीख रहे हैं राजनीति में आके। हमें तो घुटनों के अभी घुटनों के बल चलना नहीं सीखा है। हमारे राजनीतिक जीवन में आ रहे हैं तो फांसी खाने के लिए आ रखे हैं। अभी बिजली का आंदोलन है, कोई भी पार्टी नहीं चाहती थी कि बिजली और पानी मुद्दा बने, लेकिन सिर्फ इस बात के कारण आज की बिजली पानी 2013 के दिल्ली इलेक्शन का मुद्दा है और रहेगा। हो गया। बिजली का तो आया 54,000 और पानी का आया 3600। कहाँ से दूँ मैं? The calculation within the party is 10 lakh signatures would mean touching 40 lakh potential voters. डेटा आ चुका है, और कितना आपके सिस्टम में एंटर हुआ है और कितना ऐसे वैसे एंटर? ऐसे वैसे का तो हमें पता नहीं, अपने सिस्टम का हमें पता है, उसमें रिपोर्ट आती रहती है कितना एंटर हो चुका है। तो कुछ में जैसे 13 विधानसभाओं में 6 लाख से ऊपर चले गए। हम आपके साथ हैं, आपको अगर कुछ हो गया ना हम भी जरूर अपनी जान दे देंगे, ये हमारा वायदा है। छोड़ देंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बस हम भी आपके साथ हैं। 10,52,000 लोगों ने शीला दीक्षित जी को चिट्ठी लिखी है। जिस मकसद से हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था वो मकसद काफी हद तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और मैं अपना उपवास समाप्त करूंगा।
49,300 चिट्ठियाँ जो कि दिल्ली के लोगों के गुस्से का प्रतीक हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार की वजह से उनके बिजली और पानी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। ये सारी चिट्ठियाँ आज हमने रिसीव कराई हैं। उसके बाद हमने उनके सेक्रेटरी साहब से पूछा कि क्या मैडम रिसीव नहीं करेंगी, मैडम नहीं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि वो सो रही हैं। टीवी में बस देखते रहते अपन लोग। हो जाए थोड़ी ना कोई क्वेश्चन है यार 24/7 दिखाता रहता था इसको राहुल गांधी को। कहीं वो कागज फाड़ रहा है, कहीं ऐसे कर रहा है। 27 सीट आई यूपी में। सही है। मीडिया से पहले चुनाव नहीं जीते जो। और मीडिया से किसी भी समय बात कर लो 100 तो आएगी। आज तो सिविल मेरी बात है, बोले नहीं संजय जी आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने कहा 30 नहीं पार करें और 27 सीटें। तो आपको अब दिल्ली में कितनी नजर आ रही है? ये आपको मैं ठीक टाइम पे बता दूंगा। अभी हमको अपना काम करने दीजिए। 40 तो मिलने चाहिए, अगर 70 नहीं मिले सरकार बन रही आज नहीं। अभी नहीं, ठीक टाइम पे बता दूंगा। क्योंकि अपनी जो लाइन है ना, अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी सबसे बड़ी पूंजी है। वो एक भी मामले में 70 का 70 क्लीन बस बहस जहाँ हुई तहाँ फिर इतने छींटे मार देंगे सबकी, फिर सब कुछ बढ़ने हो जाए। आज कांग्रेस के 16 एमएलए विधानसभा में बैठे हैं, 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। तो आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत आप हमें चुनाव के एक दिन पहले भी ला के दे देंगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, बलात्कारी को नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वाले बैठे हैं, तो भी ऐलान करें वो किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। The BJP's representative on our session this afternoon, member of the National Executive of the BJP, Sanjay Kaul. All right, so the die is heavily loaded against me. सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है, वो गहराई तक जाता है, उसकी नसें नीचे तक जाती है, आप पहुंच नहीं पाओगे। 50 साल की पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, वो जहां पहुंच चुके हैं वहां आपको पहुंचने में कम से कम 10-15 साल लगेंगे, लेकिन तुम नहीं निकाल पाओगे यार, ये पॉलिटिक्स है, ये मामला ऐसा है। और अब तुम देखो सबके सब यही हो, मैं तुम्हारी उम्र का तो मैं नहीं कहता कि यार रेवोल्यूशन इज द ओनली थिंग, बाकी सब बकवास। इमोशन क्या होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था रेवोल्यूशनरी मेक ग्रेट लवर्स बट दे मेक लाउजी हस्बैंड्स। मतलब आष्टी करने के लिए ठीक है, लेकिन शादी वादी करके बसने के लिए ठीक है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा यार, तुम कोई अच्छा आदमी तो बताओ। दो चार इतना डरते क्यों? अच्छा आदमी बताने डरने की बात नहीं है, हमें डरने की बात नहीं। अच्छा ही आदमी पूछ रहा है, कोई डरता नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कोई अच्छा आदमी, भाई दूसरी पार्टियों में तो पैसे देके चलते हैं, मैं तो ओपनली पूछ रहा हूँ सबके सामने भी कोई अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी बताओ जिसकी समाज इज्जत करता है, उसको टिकट दे देंगे। एसएमएस मैंने दिया है, उसको एक बार देख लेना था। क्या इसमें मेरा रिप्लाई लिखा, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। सर मेरा ये सुझाव है कि जब हम अच्छा आदमी माने तो अपने अलावा ढूंढना चाहिए। सर अभी ढूंढने का समय है ना? अभी ढूंढने का समय है सर, बिल्कुल समय, इसीलिए तो अभी फाइनल नहीं कर रहे कि कोई दमदार लोग मिले। एक तरीका होता है दमदार देखने का, जिसके पास धन दौलत बहुत ज्यादा। धन की तो बात नहीं कर रहे। दूसरी बाहुबल, जिसपे मारने की क्षमता, हत्या करने की क्षमता, वो भी नहीं कर जो रहे। है ऐसे हम करेंगे, वो भी नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा। दमदार का मतलब है जिसको समाज जानता हो, जिसका समाज सारी इज्जत करता हो। दिल्ली में कहीं कोई राशन नहीं है। 26,000 करोड़ रुपया सब्सिडी पे खर्च किया जाता है लोगों को राशन मिले, पर वो सब ज़मीनी स्तर पे बहुत बेबुनियाद बातें हैं। अलग अलग एरिया में जाके हमने RTI फाइल कराना चालू किया। आज वो राशन वाले उनके हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं कि अब आप ये सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन मत दो, आपको आज से अनाज पूरा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। राशन वालों ने मेरे पर हमला करा, अटैक कराया कि राशन दफ्तर के बिल्कुल सामने मेरे चेहरे पे ब्लेड मारा गया। नहीं, कोई जान का डर नहीं था और आज भी कोई जान का डर नहीं है, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं।
विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए आम आदमी पार्टी ने। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल। ये जितने भी कैंडिडेट्स आज शॉर्टलिस्ट है इनको अब हमने वेबसाइट पे डाल दिया है, जनता से हम फीडबैक मंगा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेकार पॉइंट लगता है जो एक पार्टी को डुबा देता है, वो एक साइकोफेंसी या व्यक्तिवाद कहते हैं हम लोग। तो सर इस चीज को हम अपनी पार्टी से कैसे दूर रखेंगे? अगर मैं ये कहूं कि हमारी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल टिकट बांटेगा तो नेचुरली सारे लोग अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट मिलना है। वॉलंटियर तय करेंगे भाई टिकट किसको मिलनी चाहिए, और वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे भाई उनको क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया जाए। कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे, पर अब क्यों राजनीति में आना चाहते हैं। अरविंद के साथ पिछले 10 सालों से काम करने में ये एक्सपीरियंस मिला। जैसे राशन की लड़ाई हमने लड़ा, कई बार अटैक हुए, हम जैसे लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, एक एक दिन ना जाने के 7-7, 8-8 लाख रुपए ऑफर आते थे, चाहते हम ले सकते थे क्योंकि, पर अरविंद का साथ ऐसा था कि पता नहीं, मैं आज बोल रही हूँ, कभी बोलती ही नहीं थी। I am fighting elections, there's no doubt about it. But from which constituency, I will made up my mind. Three-time Chief Minister Sheila Dikshit, we join her now to. आम आदमी क्या है हमारे यहाँ? मैंने देखा कोई आंध्रा से कुछ लोग पकड़े हुए हैं, कुछ कहीं से पकड़े हुए हैं। Is it a party? Is that party? Can it compare with the BJP and the Congress? इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है। बहुत खुशी हुए हैं, शुक्रिया। अपने सारे दोस्तों को बोलना दिल्ली में जितने भी हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। लक्ष्मी नगर आगे निकल जाए। हम वतन हैं, हमें बेसूद ना समझा जाए और प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो यारो। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो यारो। हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, शीला जी पिछले 15 साल से नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ती आ रही हैं। मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. वैसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द एफिडेविट में नथिंग इज लेफ्ट ब्लैंक। हाँ, वो दिस टाइम अगर बाई चांस ब्लैंक हो तो यू कैन कॉल अस एंड वी कैन, मतलब वैसे तो हमने देख लिया। अगर ब्लैंक है तो हम अभी आपको नोटिस दे देंगे। हाँ अभी दिखाओ, देख लीजिए। वैसे तो हमने 10 बार चेक कर लिया, बट फिर भी आई वाज जस्ट वंडरिंग। Very nice cartoon has come out today in the papers, where I am saying, I'm asking somebody who's asking me, that what is Kejriwal's stand? You don't understand. The next cartoon says, goes to Kejriwal and says that, what does she mean by saying what is my stand? My stand is to stand for the election. बताते हैं पहले हुआ करता था, काफ़ी ज़माने पहले, कि घर घर जाके कैंडिडेट वोट मांगता था, वॉलंटियर्स वोट मांगते थे। लेकिन अब कई दशकों से पैसे का खेल बहुत बड़ा हो गया।
मुझे लगता है ये ज़रूरी है और इस डोर टू डोर कैंपेनिंग की कोई काट नहीं है जी। नमस्कार जी, आप फ्रॉम आम आदमी पार्टी। जानते हैं आप हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है बताइए चुनाव चिन्ह? हाँ, बहुत बढ़िया। बस जानने आए हैं आपसे, क्या लगता है आपने आम आदमी पार्टी का नाम सुना होगा? बहुत बढ़िया आदमी। जी, तो आपका समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, वो पैसा खूब खर्चेंगे, वो चारों तरफ होर्डिंग भी लगाएंगे। शीला दीक्षित के, विजय गोयल को खूब होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, हमारा कोई होर्डिंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम अंदर ही अंदर हम घर जा रहे हैं। तो तैयार है हम लोग काम करने के लिए? बढ़िया। हारेगी इस बार शीला दीक्षित, आप चिंता मत, जीतेंगे हम। अभी जो चद्दर घुमाई थी 10 मिनट के अंदर 18,946 रुपए, इस पैसे से चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। जी, हेलो। भाई साहब, अभी मैं एक टीवी शो के अंदर बैठा हूँ जी। अभी नहीं सर, कल कीजिए जी। हाँ, बेसिकली जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे करेक्टर में भी दिखनी चाहिए, हमारे क्या पार्टी में भी दिखनी चाहिए। तो 175 लोग जो डिसीजन लें वो सर्वमान्य होना चाहिए उस कैंडिडेट को। वो लोग जिस कैंडिडेट को डिसाइड करें वो कैंडिडेट फाइनल होना चाहिए। जिस कैंडिडेट को डिसाइड करें वो कैंडिडेट, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट। सो मान लो वो कैंडिडेट मुझे पसंद ना हो, तो मेरे पास ये फ्रीडम होना चाहिए ना कि मैं कैंपेनिंग के लिए आऊँ या ना आऊँ। और आपने जो हर जगह पर बोला कि कार्यकर्ता ही सब करेंगे, तो मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा मैं भी कुछ नहीं करूँगा। कार्यकर्ता सब करेंगे, चूज करेंगे ना, ये आम आदमी चूज करेगा, हम सब मिलकर आप कुछ नहीं, आम आदमी मिलकर ना चूज करेगा। हमारे पास कहीं 30 वॉलंटियर है, कहीं 40 वॉलंटियर हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, किसी को मिल गए 8 वोट, किसी को मिल गए 10 वोट, किसी को मिल गए 12 वोट। अब कहते हैं जिसको 12 वोट मिले उसको टिकट दे दो, वो बहुत पॉपुलर हो गया। जिसको 12 वोट मिले वो बहुत पॉपुलर है, जिसको 10 वोट मिले वो पॉपुलर नहीं है। और ये फाइनल होना चाहिए। किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? क्या रिड्यूस कर दिया तुमने डेमोक्रेसी को? सर, आपकी ही बात को मैं बोल रहा हूँ, जो आपने बोला है या पार्टी विजन में है या स्वराज में है। स्वराज ये नहीं कि सारे बैठ के वोटिंग करेंगे और वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा वो स्वराज है। स्वराज है चर्चा, सारे सब की चर्चा, मेरी भी तो चलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो फिर हमारा हक मारा जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका यही कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन आपका हक है ये। हाँ, तो फिर हक है तो फिर मिलना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये आपका ये सारी चीजें आप अपने हक के लिए कर रहे हो कि आप के? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप इस हक के लिए कर रहे हो? अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा हमारा हक मिलना चाहिए ना। ओके, हमारा मत किस को लगता है कि आपका हक है? हम सब हमारा हक है। टिकट मिलना राइट नहीं है। जिसको लगता है कि टिकट मिलना राइट है वो आज पार्टी छोड़ दे, और जिसको लगता है वो टिकट दिलाने के लिए पार्टी में है वो आज पार्टी छोड़ दे। 4 आदमी उस कैंडिडेट के हैं, 4 आदमी उस कैंडिडेट के, 4 आदमी उस कैंडिडेट के हैं। लॉबिंग चल रही है, जम के लॉबिंग चल रही है। अगर आप ना मानो तो गलत बोल रहे हो, जम के लॉबिंग चल रही है। सबके अपने अपने प्रिय कैंडिडेट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अरविंद का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कंफ्यूज किया गया है, जो प्रोसेस थी सिलेक्शन की उसको सबोटाज किया गया। क्या कर रहे हैं आप? ये कंफ्यूज करना चाहते हैं, कंफ्यूज और कुछ नहीं। आप जरूर भाई 1 मिनट बैठ सकते हैं, सब कंफ्यूज हो रहा है। 1 मिनट बैठ जाए भाई, मीटिंग आप अगर बर्खास्त आप सब लोग करना चाहते हैं तो अलग बात है, आप मैं भी बैठ जाता हूँ। आज स्वराज से ओखला में पार्टी डगमगाई है, आप इस बात को मानते हैं?
हमारा लोगों का जो सवाल है बस ये कि स्वराज से हटी ना पार्टी। स्वराज के सिद्धांत का पूरा पालन हुआ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ अभी हम इस स्थिति में नहीं है। हम एक बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे उस सिद्धांत की भावना को हम बचा सकें। उसका पूरा हम नहीं अभी कर पा रहे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, गलती हुई है हमसे। सिर्फ सॉरी कह देने से क्या उस बात का हल है? अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में रहेंगे ना, अगले 10 साल हम सब साथ रहेंगे, कम से कम 50 बार ऐसी बात हो। सॉरी अगर बदनीयती से नहीं हो रही, आप इतना तो भरोसा कीजिए। मैं तो सीधा एक बात जानता हूँ, जो इस दुनिया में इलेक्शन लड़ रहा है उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। फिर सर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ बहन बेटी जब रेप होता है तो फिर रेप कोई, वो आपका होगा, मेरा आई विल लुक आफ्टर दैट। और कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता है सरकार ने हल नहीं की? यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अभी नहीं है, अभी आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, अभी आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बाद में भी नीट एंड क्लीन रहेंगे, ये वक्त बताएगा। जो सरकार हमें पैसा राशन नहीं दे पाई, वो क्या पैसा दे पाएगी? आप हमारे ही साथ हैं, हम आपको बोल सकते हैं और आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। संतोष जैसी बिटिया, एक गरीब घर से विलोम करने वाली लड़की, यदि आम आदमी को हक दिलाने में सहयोग करती हैं, हम ये आह्वान करते हैं कि भी अपने हाथ में खुद ऐसा शासन संभालिए। ये वाला जिसमें चारों तरफ लोग हैं, ये अच्छा है। ये डार्क भी है और वैसे भी इस नवंबर में आपको इस लड़ाई को तक पहुंचाना है। झाड़ू पे बटन दबाना, बटन सूची और पढ़ना है इसमें, कलावल नगर से कपिल मिश्रा है, मुस्तफाबाद से कपिल दामा। यार क्या बात है यार, तुम लोग फिलोसफी में अब उसमें लिख दिया इस बार चलेगी झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ, सबको समझ में आता। मैं बार बार कह रहा था, वो उस पर लिख दिया आपने सारे ऑटो के पीछे, इस बार चलेगी झाड़ू। गंभीर नहीं हो आंदोलन को लेके, हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो। हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। ये ना गंधे में ये कुछ काम हो हैं, जल्दी करो। अब इस लड़ाई को अंजाम तक अरे यार, तो बहुत ही सारे बदमाश हैं। आप लोग उधर देखो, चलो आपका एडिटिंग का काम है। अरे आप कान से मत देखो, आगे देखो। जोर से बोलना है ना। भूखा भी तो हूँ मैं, पता चला जी भूखा। पता चला जी भूखे पेट वॉइस ओवर। अरे इसके बारे में बाहर मार्केट में लोगों को शक है कि हंसता भी होगा कि नहीं। बताओ इतने बदमाश आदमी के बारे में। अब इस लड़ाई को अंजाम तक आपको पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह Aam Aadmi Party activist and candidate from Simapuri here in New Delhi, Santosh Kohli was critically injured when a car hit her bike.
अभी भी हमें चर्चा किया था आपसे चलते वक्त कि इसी रनिंग रिस्ट टू लाइफ 15 डेज बैक मैं उसको मार्केट ले गया था इसी काम से, उसको कुछ खरीदना था, तो वो बहुत उदास थी। तो मैंने उससे कहा कि फाइटर उदास क्यों है, तेरा तो अच्छा चल रहा है कैंपेन, अच्छा बता रहे हैं। तो उसने कहा भैया वो सब तो ठीक है, पर वो उनके गुंडों से मैसेज मिला है कि तुझे उड़ा देंगे। यहाँ आने के बाद शी हैज वॉमिटेड इमीडिएटली, और वो वॉमिट किया है तो हमने इमीडिएटली इंट्यूबेट किया, सीइंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्पिरेशन। द नेक्स्ट 24 hours would be very much critical, and after that only we will be in a situation to let you know. दो 2001 में संतोष ने परिवर्तन ज्वाइन किया था। छोटी सी बच्ची थी वो, और तब से आज तक एक छोटी बहन की तरह राशन वालों के खिलाफ भी उसने ये कितने भी भ्रष्टाचारी आवाज उठाए, हमें दबाने की कोशिश करें, हमें कुचले, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हजारों जाने तुम्हारे देश के ऊपर। आप भी कैसे मदद कर सकते हैं इस पार्टी के साथ अपने को जोड़िए, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, हमारी पार्टी है, आप सबकी पार्टी है, आप सभी अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। The temperature jumped to 108. Nobody could believe. 108 means either there's a brain pontine hemorrhage, and she started bleeding thereafter. When the neurosurgery couldn't do much, and their intensivists were futile. जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहन संतोष अमर सब लोग पीछे रहिए, परिवार के सदस्यों को आने दीजिए। The battle for Delhi has begun, and while both the Congress and the BJP continue to downplay the potential threat from the AAP, the fact is for the first time Delhiites will have a truly triangular contest in the capital. सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाला है नरेंद्र मोदी का मेगा शो। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी।
भारतीय जनता पार्टी के पास विजय ही विजय है। कई बार अनशन किया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, कई बार अनशन किया। एक बात और, this is with a little smile, हाँ, ताकि सत्ता की बागडोर इनके हाथों से निकलकर आम आदमी के हाथ में, ये वाली चीज़ लोग समझते नहीं हैं। सत्ता की बागडोर उनके हाथों से निकलकर, दिस इज, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग इज स्वराज, बट अभी स्वराज एज अ कॉन्सेप्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आपको सत्ता मिल सकती है। डू इट लाइक दिस, आप और हम राजनीति बदलने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, नहीं, आप और हम दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए। दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए। हाँ, आप और हम भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं। हाँ। हमें आपका साथ चाहिए, हाँ। आपका वोट चाहिए। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, कई बार अनशन किया, 15 दिन भूखे रहा। आप और हम दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं। हमें आपका साथ चाहिए, आपका वोट चाहिए। इस फॉर्म में इस वक्त ये इस लायक नहीं है कि हम उस पर इतना पैसा लगा के एक्सपेरिमेंट करें। कमज़ोर है, कमज़ोर कई वजह से है। मैं इस, वैसे आपको ध्यान होगा, मैं इस आइडिया के पक्ष में, केवल अरविंद भाई उनकी बात, लेकिन उसमें वो जो आंख से आंख मिला के वो जो एक सहज बात होनी चाहिए, वैसे बिल्कुल नहीं, इतना स्टिफ है। फिर से कांग्रेस लाएंगे, दिल्ली को जिताएंगे, अब तैयारों निकल पड़ी है, रुकेगी नहीं मेरी दिल्ली, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी मेरी दिल्ली, नहीं रुकेगी मेरी दिल्ली। आपको लगता है कि लोगों का मूड चेंज होगा इसको देख थोड़ा नीचे कर लाइट। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप वैन के जरिए लोगों को ये ऐड दिखा रहे हैं, फिल्मों के जरिए दिखा रहे हैं, तो क्या लोगों का मूड बदलेगा, कांग्रेस में रुझान होगा? 4 तारीख को वोट पड़ेगा और यही नहीं बहुत सारी। मैम आपने क्या आप सीपी ऑफिस चले आइए, मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ। आइए आप यहीं पे बात करते हैं, आप परेशान मत होइए। आरकेपुरम से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी पर मीडिया सरकार ने आरोप लगाया है कि वो डोनेशन के बदले किसी के खिलाफ धरना देने के लिए तैयार हो गई थी। मीडिया सरकार का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेता कायदे कानून को ताक पर रखकर पैसे के बदले हर उस काम के लिए तैयार हो गए थे जिनका आरोप ये दूसरे नेताओं पर लगाते रहते हैं। Massive crisis at Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party just ahead of the Delhi election. A sting operation video which shows Aam Aadmi Party members purportedly accepting black money contrary to their claims. It has come at the worst time. They will lose all political capital that they have built up in the last few months. Sir, time's now make Baba. What's going on, Yogendra Yadav? We thought this was a party with a difference. Your candidates were different. This is really low level. योगेंद्र जी, आपने सर्वे किया था और बहुत बड़ी रुझान आपने दिखाए थे कि बहुत तेजी से लोगों का जो है आम आदमी पार्टी के लिए झुकाव बढ़ा है और अच्छी सीटें आप दे रहे थे। इन तमाम घटनाओं के बाद सीडी आती है, चिट्ठी आती है, स्टिंग ऑपरेशन आता है, क्या बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? क्योंकि ये टेप एडिटेड हैं, क्लिप्ड हैं, इसलिए हम अनएडिटेड टेप देखना चाहते हैं। इसलिए आप सबके माध्यम से हम श्री अनुरंजन झा, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, उनसे अनुरोध करते हैं, उनको चिट्ठी भी भेज रहे हैं कि वो कृपया करके हमें पूरे अनएडिटेड टेप्स दें। मैं आम आदमी पार्टी को फुटेज क्यों दूं? क्या आधार बनता है, किस आधार पे दूं? ना इस देश की कोई भी संवैधानिक संस्था मुझसे फुटेज मांगेगी, रॉ फुटेज, मैं देने को तैयार हूं।
सबका मुंह काला कर रही थी और कह रही थी सब भ्रष्ट है, आज उसी का मुंह काला हो गया है। Aam Aadmi Party is the most corrupt party. We had a lot of hope from them, but now I consider that the people should trash them. Challenge faced by the Aam Aadmi Party in the lead up to the elections, and while at the end of the day they managed to. Because we are accused, we should not have access to the evidence on basis of which we are accused. I mean, this I've heard for the first time in my life. I thought even murderers are given the evidence on the basis of which they are tried. ड्रिंक करने वाली संस्था ने आम आदमी पार्टी को फुटेज नहीं दिया और वो रॉ फुटेज चुनाव आयोग ने दे दिया गया है। This is the story that's breaking. The media sarkar sting on the Aam Aadmi Party. The party has now accessed raw footage of that sting from the Election Commission. So अगर आप 5 मिनट के लिए भी भरने में आ जाएंगे, that would be a great help and use for. Suppose we don't have legal documents. What's the process for donations? This is the crucial bit जहाँ पे उन्होंने कट कर दिया इसको। No, suppose we don't have legal documents, but we want. We can't do it like that. कोई concrete होगा ना, झूठ नहीं बोलेंगे। We can't lie. We can't lie. 14 सेकंड काटे गए। सिर्फ 14 सेकंड में क्या कह रही हैं शाजी आप ये? 14 सेकंड में कहानी बदल देगी। सारी कहानी। यदि 2.5 मिनट की क्लिपिंग में से आप 10 सेकंड निकाल देते हैं और वही वो 10 सेकंड जो कि पूरी बातचीत का अर्थ बदलते हैं, इसका एक ही मतलब है, ये डॉक्टरिंग है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उम्मीदवारों को जो सदमा पहुंचा है उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? और ये भी कि उनको सड़कों पे क्या-क्या बातें सुननी पड़ी, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? स्टिंग में भी नो डाउट काफी फर्क तो डाला ही है, चाहे इसको आप माने ना माने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डेंट तो करा ही है स्टिंग में। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि स्टिंग से हमारी पार्टी को इतना नुकसान हुआ, तो उसमें वो गुंजाइश ही कहाँ बचती है, माने ना माने। स्टिंग का पीछे कौन हो सकता है? अगर बीजेपी है, कांग्रेस, किसका लगता है कि किसने करवाया इस बार? मुझे नहीं। The countdown has begun for the winter assembly elections, and no election will be watched more closely than Delhi. Fairly healthy debut for the Aam Aadmi Party with 7 seats out there. कांग्रेस को 27 सीट, बीजेपी को यहाँ 30 नहीं 32 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 3। The Aam Aadmi Party 7 to 12. So the big picture that is emerging is that the Congress is ahead. भैया आम आदमी पार्टी को बटन दबाना नहीं, मेरा वोट नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खुश रहो फिर। कांग्रेस और बीजेपी है, डेली अखबारों में उनका आ रहा है। उनके जो निगम पार्षद वगैरह हैं वो निकल चुके, उनकी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह वो 15 दिन तक तूफान मचा देते हैं, क्योंकि उनका संगठन ही पहले से ही है, उन्हें पता है क्लियरली। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज सुने, आपने बार बार कहा है कि मोटे तौर पे जो चुनावी रेस में जो पार्टियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस हैं, आम आदमी पार्टी अभी यही दो ट्रेडिशनल पार्टीज है। अरविंद केजरीवाल उससे अरविंद केजरीवाल की बात आप मत करिएगा, वो एक कहानी थी, खत्म हो गई है। There are a lot of hopes attached to you. If you lose this Delhi election, a lot of things which I think can happen in the national scene will get stalled for a couple of years or more, which is going to be very very bad. अभी 18 घंटे मतलब लग जाओ और जीतो। जनतंत्र मतलब जनता का शासन। आज तक बचपन से हम सुनते आए, पढ़ते आए, हमें पढ़ाया गया, घुट्टी पिलाई गई स्कूल में, भारत एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है, भारत है। हम पूछते थे जी क्यों जनतंत्र है? कहते थे चुनाव होते हैं इसलिए जनतंत्र है।
चुनाव को तो जनतंत्र नहीं कहते। 5 साल में एक बार वोट डालो और उसके 5 साल उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहो जिसको चुन के भेजा था। इसको जनतंत्र थोड़ी कहते हैं। जनता निर्णय ले और नेता उस निर्णय को फॉलो करे। ये व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमारा नाम है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक ही चीज है। अरविंद का फेस, झाड़ू का चिन्ह और आम आदमी पार्टी, और इन 3 चीजों का बस एक ट्रायड बना के इसको बार बार रजिस्टर करवाना। आपकी विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। हमारा मकसद है कि ये एमएलए और इन्होंने जो इतनी पावर अपने अंदर और फंड्स अपने अंदर कंट्रोल कर रखे हैं, ये सारी की सारी ताकत जनता के हाथ में कैसे दी जाए। देखिए, दिल्ली के जो 6 सबसे बड़े इश्यूज एमर्ज कर रहे हैं हमारे सर्वे में, जो आपने देखा था, वाटर एक्चुअली, और आज की मीटिंग में फिर डिसाइड हुआ है दैट इट्स वंस अगेन सर्वे शोज वेरी क्लियरली water is not only the most important problem of Delhi, it is 3 times more important than the next important problem, so it has to be water, water, water. हम समझते हैं ये बेसिक डिग्निफाइड है और इसको फ्री देना सरकार की ड्यूटी है। अब तक कोई पार्टी ने इस चीज़ों को नहीं कहा है। We should be the first party to say these things straight. उसके अलावा एक भी प्रॉमिस करने से पहले जरा सोचिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी गरीब के पास पानी का बिल देने के पैसे नहीं है तो पानी नहीं पिएगा क्या वो? उसको पानी पीने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर में, 700 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा और दिसंबर से बिजली के दाम दिल्ली के अंदर आधे कर दिए जाएंगे। Or are you succumbing to the worst forms of populism? Do you not believe you have been unnecessarily exuberant, making promises which are unrealistic, especially cutting your electricity bill by half and providing 700 liters of water to each family free? Our expectation is that not 50% reduction of rates, but in the bills that the consumer finally pays, it should lead to 50% reduction. And we've said that clearly. It's not a promise. From the language of the full draft, We spent some it's not a hours promise. thinking about the language of how to write it. श्री केजरीवाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो हमारे चुके हैं, यही रुकवा था, आपको हम जिताएंगे यहीं पर ही। हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा देने चाहिए आपको। पावर ही नहीं है तो हम पावर देंगे ना आपको। झुग्गियों को पक्का किया जाएगा, राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, आधार कार्ड कई लोगों के बने नहीं है, जिनके बने उनके एड्रेस गलत हैं, वो बनवाए जाएंगे, डिस्पेंसरी खोली जाएगी। सर, एक साल में रेगुलराइज आप कैसे करेंगे? फॉर्चुनेटली वो चीज़ अभी पब्लिक डोमेन में नहीं गई सर है। वो फेसबुक पेज पे वीडियो अपडेट है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं 1 साल में सब कुछ रेगुलराइज कर दूंगा। This is not cast in stone. I think we should still think carefully. This is the last chance to think carefully. अभी तो ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट में हम कुछ चीजें कह जाते हैं, हम उत्साही हैं, हम ऑप्टिमिस्ट हैं, पर लिखने से पहले तो सोचें। नहीं, I really think we should think about कैसे भाई साहब? बधाई। प्रणाम सर, प्रणाम। मेरा नाम मांगेराम गर्ग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बीजेपी दिल्ली स्टेट का एक्स प्रेसिडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। एमएलए भी रहा हूँ। हाँ, मालूम है मेरे को। भाई अभी बहुत जोर से लगे हुए हैं। जो आपका स्कूटी के पीछे वो है छोटा होर्डिंग, निश्चित रूप से प्रभावित करता है। It's working. एकदम सीधा का सीधा अटैक किया।
आप लोगों की कंप्लेंट कब डिक्लेयर होगी? आ जाओ शुरू हो जाएंगे डिक्लेयर। और ग्रुप तो अनाउंस हो गया। राजेंद्र जी, जय माता दी। कैसे सर? कब जाना होता है ऐसे ही The BJP has bitten the bullet over announcing its chief ministerial candidate for Delhi. Dr. K. Harshvardhan got the nod after a meeting of the BJP's parliamentary body. बहुत लोग पूछते हैं ये अरविंद ने क्या किया, शीला दीक्षित के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया, दिस इज सुसाइड, कहाँ जाके उसको फंसा दिया तुम लोगों ने। आई कैन से एट द मोमेंट अरविंद इज लीडिंग इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरविंद केजरीवाल आज शालीमार बाग में आपसे मिलने, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आज की दिल्ली जो चुनाव में जा रही है, 4 दिसंबर को आप अपना वोट डालेंगे। ये याद रखिएगा कि 15 साल पहले की दिल्ली क्या थी और आज की दिल्ली क्या है। हम नेता नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी आती, लेकिन हमें मजबूरी में यह पार्टी बनानी पड़ी और अब यह पार्टी बनाई है तो इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा ये देश। For the first time, Delhi is an impossible state to predict. The fact is, Sheila Dikshit has been in power for 15 years now in Delhi. BJP is now rising and Arvind Kejriwal has caught the imagination of the Delhi public. Now to the Delhi vote. No one wants to put their neck on the line on this one. It's going to be a really fiercely fought and extremely close battle by the looks of it. आखिरी वोट जब तक पड़े तब तक जागरूकता हमारी रहनी चाहिए। आखिरी वोट पड़ने के बाद हमारा काम खत्म होगा, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। It's the same story before every election. Money, alcohol and muscle power being used to win votes. The Delhi Election Commission has announced a slew of precautionary measures. हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स, हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, उनका पूरा एक जाल बिछाया हुआ है और ये दिन रात कार्यरत रहेंगी। हेलो, हाँ बोलो। खड़ी अभी कितने नंबर में? दरवाजा खोल। ये माल चलो अंदर चलो। अरे प्यार बता, हम बात वही बोल रहे हो। आराम करिए। चुपचाप करो। किसको करो उसको करो। ऐसे ही सीरियल वाइज ही उल्टा करें, ये नंबर होगा, बताइए।
अभी भी लगाओ फटाफट और मशीन चालू करो। हरा वाला ना बटन दबा देना। हाँ हो गया। This is for the first time that 50% votes are not being crossed at about 3 or 6. से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हर पॉइंट पे हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट को रोक लिया जाता है, हमारे हर किसी को रोक लिया जाता है। एक सेकंड, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? मादीपुर। आप इलेक्शन एजेंट को आपको कर दिया, बैनर अलाउड नहीं है, पटियाला के आरओ ने कह दिया। तो फिर उनको बोलोगे हम मेल कर रहे हैं ना आपको। This could be seeing Delhi going for a record poll figure. वोट क्लोज हो गया ना तो। गेट बंद कर दिया जी, गेट क्लोज। गरम कर दो थोड़ा। गरम होने दो ना। अलग अलग न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाएगी। इंडिया टुडे ओआरजी के एग्जिट पोल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। इनके एग्जिट पोल में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 20 और आपको 6 सीटें मिल रही हैं। हमारी एविडेंस ये दिखा रही है कि इलेक्शन से 72 आवर्स पहले तक हम नंबर 1 पे थे। वी डोंट नो वेयर वी आर नाउ। एग्जिट पोल्स आर सेइंग दैट वी हैव स्लिड डाउन। हम देश में जैसे पॉलिटिक्स होती है वो बदलना चाहते हैं और उसके लिए दिल्ली हमने एक फर्स्ट स्टेप के रूप में चुना था। एक चीज़ और वॉलंटियर ये चाहता है कि ठीक है, हमने थोड़ा बहुत जीतना भी जरूरी था और सिद्धांतों पर टिकना भी जरूरी था। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अपनी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर रखा है। राजनीति में वो स्टेज कभी नहीं आती जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो चीज़ आप केवल एक आश्रम में करते हैं। राजनीति हमेशा शुभ को सच बनाने का काम है। एक आपने आदर्श रखा शुभ, दैट्स योर आइडियल। उस आइडियल को मैं सिर्फ उस पर पोइट्री नहीं करूंगा, उसके बारे में कोई आश्रम बना के नहीं बैठूंगा, कोई घर में एनजीओ नहीं खोलूंगा, उसको इस रियल वर्ल्ड में मैं लागू करूंगा। अगर आप केवल सच की पॉलिटिक्स, रियलिज्म की पॉलिटिक्स चाहते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी कर ही रही है कि भाई लेन देन के बिना होता नहीं है मामला। शुभ और सच में हमेशा एक तार बना के रखना हमारी राजनीति की चुनौती है। वो चुनौती आज भी रही है, कल भी रहेगी। अब परसों सुबह क्या आएगा हम जानते नहीं। अगर बाई चांस आप ऐसा कुछ कर दें जिससे 4 दिन में इस देश का पूरा सिस्टम बदल जाए, इसका मतलब कुछ धोखा हो गया। दिस सिस्टम, समथिंग इज रॉन्ग। दिस विल बी ए लॉन्ग हॉल। काफी छोटी छोटी बैटल्स में हम जीतेंगे, कई छोटी छोटी बैटल्स में हम हारेंगे ताकि हम वॉर जीत सकें। It's the most anticipated election result this year. Will people repose faith in Sheila? Can the BJP's Harshvardhan get to rule Delhi for the first time? रात को ही आएगा। हाँ 11:30 बजे। चलो 11 बजे 11-12 बजे रखो चलो। रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट वाला पता नहीं जेनेसिस का मैं पूछ रहा हूँ मीनिंग क्या होगा। काउंटिंग 8:30 को स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक काउंटिंग स्टार्टेड नाउ। ईवीएम का काउंटिंग 8:30 को स्टार्ट होता है।
इसलिए काउंटिंग एजेंट ध्यान से सुनिए कि वो जो भी कॉपी उनका काउंटिंग सुपरवाइजर डुप्लीकेट में उनको बाहर दे जाए उसको साइन करके वापस कर दें, क्योंकि इसकी जो है अगर राउंड वाइज स्टेटमेंट होगी आप लिख लो, इसको एंट्री कर दो तो फिर 4 9 6 5 6 अभी बीजेपी ज्यादा हो गई। नागलोई चार्ज बीजेपी क्लियर, नरेला बीजेपी क्लियर, नरेला भी ये 18,000। और कौन आगे चल रहा है? कांग्रेस, ठीक है। अरे 23 करोल बाग किसका है? करोल बाग किसका है? लक्ष्मी नगर अभी 1900 का मार्जिन है, पीछे चल रही है कांग्रेस लीडिंग। शीला दीक्षित के कितना है? 1090। अरविंद केजरीवाल 25। क्या बात है यार, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल। सर जी, तिमारपुर we are one. We are number 1 in तिमारपुर। संतोष कोहली की सीट सीमापुरी 8,000 वोट से। For all the exit polls and opinion polls, something very interesting is happening in the National Capital Region. Has Arvind Kejriwal managed to successfully steal the agenda away from the BJP right under its nose? This was meant to be a referendum for Arvind Kejriwal's brand of politics. मॉडल टाउन में हमारा एक साथी अखिलेश पटेल त्रिपाठी जी से उसने 4 बार पीटा था, उसकी हड्डी टूट गई थी। 8,500 The Congress party is in big trouble this morning in Delhi because they are breached in Narela by the Aam Aadmi Party. The Congress party has been breached in Sultanpur Majra by the Aam Aadmi Party. The Congress party has been breached in Patel Nagar by the Aam Aadmi Party. The Congress party is breached in RK Puram by the BJP. कांग्रेस रेस में नहीं दिख रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि अब आप आएगी रेस में, इतने रुझान आ चुके हैं। नई दिल्ली विधानसभा में 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 12 राउंड की आखिरी बार आ जाते हैं हम लोग ना, अरविंद भैया आ जाते हैं, 340 वोट से मिल जाते हैं हमको। अच्छी पार्टी हर जगह से वोट मिले हैं। और कमाल कर रहे हो आप। आपने एक चीज देखो ना, आपने फाइट नहीं की है। How much vote you have got? That is the point. हारे या जीते ये बताओ, मैं कहानी नहीं सुनना चाहता। हार गया। ठीक है, हार गया। कहाँ पे? राजेंद्र नगर। नहीं वो सुल्तानपुरी माजरा। सेव कर लो, कंट्रोल एस करके सेव कर लो तो डेटा उड़ जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का स्पेस दिया है, इट्स अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। बीजेपी को सोचना होगा कि आखिर दिल्ली में स्थिति क्यों आई। हाँ सर, बधाई हो आपको। रिटर्निंग ऑफिसर साहब बात करेंगे आपसे। Arvind Kejriwal. Shiv, we have just been told that Arvind Kejriwal has won from the New Delhi constituency with over 22,000 votes.
That's a massive, massive victory. He has defeated Sheila Dikshit, the incumbent chief minister. There on your screen, Arvind Kejriwal has just come out on your screens right now. Look at the euphoria here at the Aam Aadmi Party's office. और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। हम विपक्ष में बैठकर ये देश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड खड़ा करेंगे। आम आदमी पार्टी पैदा हुई, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं कि कांग्रेस फेल होगी, बल्कि विपक्ष भी इस देश का फेल हुआ है। Congratulations. Thank you so much. देखा ये दिखाता है कि जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है। ये मेरी जीत नहीं है, मैं बहुत ही आम आदमी को The people of Delhi have taken a decision which we respect. That's all I can say just now. It's a stunning debut, a political miracle of sorts. Debutant Aam Aadmi Party is not going to form probably the next government, but my God, what a performance! No party is in a position to form a majority. The BJP, the single largest party in the Delhi Assembly, doesn't want to take a shot at government formation. Rumblings within the Congress party are growing louder. They've issued unconditional support to the Aam Aadmi Party. कांग्रेस से कैसे सपोर्ट ले सकते हैं? It's out of the question. 50% off in electricity bills, 700 liters of water free to everybody. Let them fulfill it. You're not convinced that it is practical? No, are you? Having undertaken this miracle, I'm deeply disappointed that they're running away from their responsibilities and continuing to be an NGO. 36 सीटें हैं, 8 कांग्रेस की, 28 आपकी। आप चलाइए सरकार, कीजिए वायदे पूरे। इतिहास में पहली बार आपकी राय पर बनेगी सरकार। जिन लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो जरा हाथ खड़ा करें। लगभग 50 के करीब लोग हैं। जिन लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दें। These people challenged you, and that's why you formed a party. Now you are a political party, okay? And to admit it that you're a political party and act like a politician and go ahead and deliver now. I support. Delhi is all set to have a new government. It is history in the making. This is a big moment for Indian democracy. But Yogendra, many questions are going to be raised again and again about what Arvind and all of you said earlier. There's no question of taking support from either the Congress or the BJP. How will you avoid the label of being a party that started off with politics not as usual and may have in this choice ended up embracing politics as usual? अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति
कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की आज से 2.5 साल पहले यहीं पे हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे। क्या मांग रहे थे हम लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करो। इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, अनशन किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये साफ हो गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी तब तक इस देश को सुधारा नहीं जा सकता। इस देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी। अब हम कसम खाएंगे, मैं एक एक लाइन बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। एक बार फिर दोहराएंगे। अरे टेबल गिर जाएगा यार। वो देखो यार वहाँ पकड़ रहे हैं कैमरों वालों की। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? कैमरा वालों की बदमाशी है। केजरीवाल जी
you.